here comes our chapter 8 components of a computer system. That is again the part of ICT skills unit 3. So, a computer, what is a computer? A computer is an electronic device that can perform a variety of tasks by executing a given set of instructions. It is a versatile device and can handle multiple tasks such as performing calculations, playing music, painting, managing data and files, and developing various applications, right? It is able to execute various tasks due to its speed, accuracy, storage capacity, and versatility. So, versatility is the ability of something to perform various functions at a time, right? However, a computer also has some limitations. For example, it cannot think on its own, it cannot take decisions on its own, it needs instructions at every aspect, at every step to perform its operations. So, a computer is an electronic device that can handle multiple tasks at a time, such as performing calculations, playing music, painting, storage, etc. It has a few advantages and disadvantages. You know that everything has pros as well as cons. So, its advantages are speed, accuracy, and storage, whereas its disadvantages are it cannot think on its own and it needs instruction at every step. Cybercrime is also a disadvantage of a computer. Then here we have basic components of a computer system. So a computer system has basically three important components: input unit, CPU, and output unit, right? Input unit is the one by which we gives input to something, right? The way we have input in human beings, input is received through eyes, nose, ears, mouth. Just the same way in computers, input is given through input devices like keyboard, mouse, joystick, etc., right? Then we have CPU. So CPU has three parts: MU, ALU, and CU. MU is memory unit, ALU is arithmetic and logical unit, CU is control unit. So memory unit is the place where something is stored, where instructions are stored. ALU is the one where operations are performed, and CU is the one which controls, right? So in human brain, you can understand from here that MU, memory unit in human being, is brain. Brain is used for storing all kinds of information, right? You remembers everything by your brain. Now it stores everything for whatever you have studied for your exams, right? Then we have MU in computer. Data and instructions are stored in MU. ALU, that is arithmetic and logical unit in human being, is again the brain. Brain performs all the calculations, all the operations. Suppose we're solving a mathematical sum, all the operations will be performed by our human brain only, right? And in computer, arithmetic and logical operations on data are performed by ALU. So then we have CU. So CU is the part where which controls the other parts, right? Brain controls the functioning of the entire body. Just the same way, CU controls the function of all the components of a computer. And all these three, memory unit, storage unit, ALU, operational unit, CU, control unit, all these are part of CPU. We have then our output unit, third part. So in human being, the output unit is the output is in the form of voice and action. In computer, we get output by our monitor, the screen we get by speakers, right? By sheet, by printer. So output unit in computer, after processing the output is displayed on the monitor. It can be in the form of soft copy, like on the on the monitor, and hard copy after printing out. Input unit given through input devices like keyboard, mouse. CPU may MU, storage. CPU may ALU, operations. CPU may CU, control. Output may we have output devices like monitor and printer. Output can be either hard copy or soft copy. It is displayed on monitor. This is the block diagram of the functioning of computer. So see, input unit, data and instructions are given
to the control unit, to the CPU, right? In CPU we have the control unit which controls input and output. So CPU में control unit passes this input to ALU which does all the operations. Then it goes back to the CU and gets stored in the MU. Then it comes back and gives output. That is the result. Input unit are the devices that are used to provide input to the computer. These devices are used to translate the user's command into a binary code that can be recognized by the computer. So what is binary code? A binary code is a code that is recognized by the computer because a computer cannot understand a natural language. The language of computer is the binary language or binary code. Computer can only understand binary code. The most commonly used input devices are keyboard, mouse, scanner and joystick. सो इनपुट डिवाइसेस होते हैं हमारे जो इनपुट प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को. ये जो डिवाइस होते हैं वो कंप्यूटर को उसकी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देते हैं कंप्यूटर को जो बाइनरी कोड होता है उस लैंग्वेज में. और कॉमन एग्जांपल्स हमारा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और जॉयस्टिक. फिर हमारा आउटपुट होता है, आउटपुट यूनिट होता है जो आउटपुट देता है. द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग comprise the output unit of a computer. Some of the commonly used output devices are such as monitor, printer, web camera, headphones, speakers, plotters, etc. The output can be in the form of soft copy that is displayed on the monitor or in hard copy that is printed on a paper. It can be in audio format as well, in sound file that is through the speaker. Then we have our CPU, Central Processing Unit. CPU, Central Processing Unit. We studied it has three parts: ALU, CU, MU. Okay, so CPU is the main unit of the computer and it is also known as the brain of the computer. Computer brain is known as the CPU. It controls all the internal and external devices of a computer and performs arithmetic logical operations. Due to small size, a CPU is referred to as a microprocessor, right? CPU का size इतना छोटा होता है, it is referred as a microprocessor. Microprocessor क्या होता है? It is a type of integrated circuit built on a tiny piece of silicon. See, this is how a microprocessor looks like. It is a type of integrated circuit that is built on a tiny piece of silicon. So एक integrated means united, एक united circuit होता है जो एक tiny piece of silicon पे built होता है. ठीक है, तो CPU क्या करता है? कंट्रोलिंग का काम करता है, ये ऑपरेशंस, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने का काम करता है, और ये हमारा स्टोरेज का भी काम करता है. और ये सब एक छोटी सी जगह पे होता है जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, जो एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, एक सिलिकॉन के पीस पे बना होता है. एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, उसके अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं. द ट्रांजिस्टर्स वर्क टुगेदर to store and manipulate data so that the microprocessor can perform a variety of functions. जो हमारा एक ट्रांजिस्टर होता है वो साथ में मिलकर वर्क करता है to store and manipulate data so that the microprocessor can perform a variety of functions. Or speed of a CPU is determined by the number of instructions it executes per second. This is very, very, very important. How is the speed of CPU determined? So the speed of CPU is determined by the number of informations it executes per second, which is measured in megahertz. So you know the symbol of hertz is Hz, and the speed of a CPU is measured in megahertz, MHz. Hertz, you know hertz. You have studied hertz in science, and I am very sure about it that you have. Nowadays, due to technological advancement, CPU speed is measured in gigahertz. पहले मेगाहर्ट्ज में होता था, अभी गीगाहर्ट्ज में होता है. अब इसकी जो ये और ज़्यादा एडवांस हो गया है. ठीक है, सो CPU हमारा मेन यूनिट है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ये सारे इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट्स कंप्यूटर के पार्ट्स को कंट्रोल करता है, सारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है. स्मॉल साइज़ की वजह से इसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, जो कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है एक टाइनी सिलिकॉन के पीस पे. ठीक है, इसके अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं. ये ट्रांजिस्टर साथ में काम करते हैं टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा सो दैट द माइक्रो प्रोसेसर कैन परफॉर्म वेराइटी ऑफ फंक्शंस. स्पीड ऑफ जो CPU होती है वो हमारी होती है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इट एग्जीक्यूट्स पर सेकेंड.
पहले ये मेगाहर्ट्ज़ में मेजर किया जाता था, अब एडवांसमेंट के साथ ही गीगाहर्ट्ज़ में मेजर किया जाता है। सीपीयू के 3 पार्ट्स हैं, ALU, CU और MU। यहाँ पे गिवन है ALU। ALU की फुल फॉर्म है हमारी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक कंपोनेंट है सीपीयू का विच परफॉर्म्स द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स पे लॉजिकल ऑपरेशंस और अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ये। Now the question arises is that what is an operand? So operand एक हमारा वैल्यू होता है, एक्सप्रेशन होता है that is used to perform the operation। जैसे x प्लस वाई, तो x और y हमारे यहाँ पे ऑपरेंड्स हैं और प्लस हमारा ऑपरेशन है, ठीक है। सो ये एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड्स पे। एरिथमेटिक ऑपरेशंस हमारे होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन। द लॉजिकल ऑपरेशंस यूज़ द रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन टू पाइथन चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें बहुत डिटेल में गिवन है कि व्हाट आर ऑपरेंड्स, व्हाट आर ऑपरेटर्स, इट्स टाइप्स, व्हाट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स, राइट। सो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे ऑपरेटर्स होते हैं जो किसी भी दो वैल्यूज़ की रिलेशन बताते हैं, जैसे ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, not equal to, etc. The logical operations test various conditions that are encountered during processing and allow for different actions to be taken based on the result. So the logical operations test various conditions that are encountered during processing and allow for different actions to be taken based on the results. The data and the operands act as the input for ALU and it generates the output as a result of computation. So हमारा arithmetic operations होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन। लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशंस हमारे वेरियस कंडीशंस को टेस्ट करते हैं दैट आर एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग एक प्रोसेस में, जो अलाउ करते हैं डिफरेंट एक्शंस करने को बेस्ड ऑन देयर रिजल्ट्स। डेटा एंड ऑपरेंड्स एक्ट एज इनपुट की तरह एक्ट करता है फॉर द ALU के लिए डेटा और ऑपरेंड्स जो हैं वो इनपुट की तरह काम करते हैं और ये जनरेट करते हैं आउटपुट को एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिशन। देन हमारे पास है कंट्रोल यूनिट हमारा, दिस यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ एवरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस अमंग द वेरियस यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को कंट्रोल करते हैं और ट्रांसफर ऑफ डेटा, इंस्ट्रक्शंस, इन सब भी कंट्रोल करते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सिक्यूट द इंस्ट्रक्शन द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम कंट्रोल यूनिट। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द कंपोनेंट्स, कंप्यूटर को सिग्नल्स मिलते हैं कंट्रोल यूनिट से, ठीक है। इट एक्सट्रैक्ट्स द इंस्ट्रक्शन फॉर मेमोरी, ये इंस्ट्रक्शन को एक्सट्रैक्ट कर लेती है मेमोरी से और डिकोड करती है, फिर सेंड करती है सिग्नल्स ALU को कि परफॉर्म करना है उसे ऑपरेशन, और इसी को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर। क्यों कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर? बिकॉज ये सारे पार्ट्स को ये मैनेज करती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारा ब्रेन है नर्वस सिस्टम का पार्ट। ब्रेन क्या करता है? सारे पार्ट्स को मैनेज करता है। ऐसे ही कंट्रोल यूनिट हमारा सारे पार्ट्स को मैनेज करता है। सो कंट्रोल यूनिट सब कुछ कंट्रोल करता है और इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से लेता है। सी यहाँ पे हमारे पास फ्लो चार्ट गिवन है ना, इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लिया, फिर सिग्नल भेजा ALU को कि आपको परफॉर्म करना है ऑपरेशंस, ये परफॉर्म करता है, फिर वापस कंट्रोल यूनिट में आ जाता है, ठीक है। डिकोड करता है और सिग्नल सेंड करता है ALU को, फिर ALU रिक्वायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, फिर हमारा आउटपुट आता है, ठीक है। ऐसे फिर हमारे पास MUM मेमोरी यूनिट। द मेमोरी यूनिट इज़ द प्रिंसिपल स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर। इट स्टोर्स बोथ डेटा और इंस्ट्रक्शन, दोनों स्टोर करता है हमारा मेमोरी यूनिट। डेटा इंस्ट्रक्शंस कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड परमानेंटली इन दिस यूनिट सो दैट दे आर अवेलेबल whenever required. The memory unit is linked with other parts of a computer and sends them the data when needed. कंप्यूटर मेमोरी के दो पार्ट्स में क्लासीफाई है, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी में। इंटरनल मेमोरी हमारा प्राइमरी मेमोरी भी होता है और एक्सटर्नल मेमोरी हमारा सेकेंडरी मेमोरी भी होता है। सो इंटरनल मेमोरी हम इसे मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ये स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डेटा को स्टोर करता है जो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं वाइल वी आर रनिंग द कंप्यूटर, राइट। एक्सटर्नल मेमोरी हमारा सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है और ये स्टोरेज डिवाइस है दैट कैन रिटेन और स्टोर डेटा परसिस्टेंटली, मतलब ये परमानेंटली स्टोर करता है डेटा को, ठीक है।
कंप्यूटर मेमोरी यूनिट हमारा प्रिंसिपल स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। डेटा इंस्ट्रक्शन दोनों स्टोर करता है। डेटा इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं जब भी ज़रूरत हो, और मेमोरी हमारी लिंक्ड होती है अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर से भी, और उन्हें डेटा सेंड करती है। सी मेमोरी में हमारा डेटा होता है, और जब भी किसी पार्ट को चाहिए होता है वो उस पार्ट को डेटा सेंड कर देती है। दो टाइप्स की मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, रजिस्टर फिर आता है हमारा रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? हमारा एक बहुत छोटा सा स्मॉल डेटा होल्डिंग प्लेस होता है रजिस्टर। ठीक है, अ रजिस्टर इज़ अ वेरी स्मॉल डेटा होल्डिंग प्लेस इन अ कंप्यूटर प्रोसेसर। इट होल्ड्स एन इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज एड्रेस और डेटा। There are various types of register. Each register performs एक specific function. Some most commonly used registers हैं हमारे ACDR, AR और PC, मतलब accumulator, data register, address register एंड प्रोग्राम कंट्रोल। ठीक है, तो आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक्यूमुलेटर, डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर और प्रोग्राम कंट्रोल क्या है? तो ये है हमारे रजिस्टर। अब रजिस्टर होते क्या हैं? ये स्मॉल डेटा होल्डिंग प्लेस होते हैं कंप्यूटर में, जो डेटा इंस्ट्रक्शन दोनों ठीक है, स्मॉल होल्डिंग प्लेस होती है कंप्यूटर में रजिस्टर। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है, स्टोरेज एड्रेस और डेटा को होल्ड करता है। वेरियस टाइप्स ऑफ रजिस्टर हमारे जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सब मोस्ट कॉमनली यूज रजिस्टर्स हैं हमारे एक्यूमुलेटर, डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर और प्रोग्राम कंट्रोल। There are two parts of computer, hardware and software. So hardware is the part of which we can touch physically. So hardware are the physical components of a computer that we can touch and feel. It comprises the hardware of a computer such as CPU, keyboard, mouse, printer, motherboard, RAM. All these we can touch by our hands, right? It can be electronical as well as mechanical. So hardware are the physical components that we can touch and feel. Software is a collection of programs and procedures that instructs a computer about how to perform the different tasks, the different types of tasks, right? So सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को इन्फॉर्म करता है, इंस्ट्रक्ट करता है दैट हाउ टू परफॉर्म द डिफरेंट टास्क. A software enhances the capability of the hardware and directs the computer to perform operations like input, processing and output. Software can be classified into two types: system software and application software. See, what is an application software and a system software? An application software एक software होता है that fulfills a specific need or perform task. So application software हमारा एक particular task perform करता है. जैसे आप ऐसे डे लाइफ से आपकी डे टू डे नॉर्मल लाइफ से समझिए, डेली लाइफ से, तो जैसे हमारे पास क्लॉक है, वो हमारा एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है टाइम बताने का. बट जो हमारा फ़ोन होता है वो सारी चीज़ें एक बार एक साथ करता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है. और जो क्लॉक है जो स्पेसिफिक पार्ट प्ले कर रही है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर आता है. सो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट फुलफिल्स अ स्पेसिफिक नीड और परफॉर्म टास्क. Whereas हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इट इज़ डिज़ाइन टू रन अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशंस टू रन. ये डिज़ाइन क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करने के लिए, और इट प्रोवाइड्स एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर द एप्स टू रन. नाउ वी हैव स्टोरेज यूनिट या फिर हमारा मेमोरी यूनिट. सो लेट अस डिस्कस अबाउट मेमोरी इन मोर डिटेल इन दिस सेक्शन. इंटरनल मेमोरी हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है. ठीक है, एवरी कंप्यूटर हैज़ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी यूजुअली रेफर्ड एज द मेन मेमोरी. मेन मेमोरी है हमारा प्राइमरी स्टोरेज. ठीक है, प्राइमरी मेमोरी. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनल मेमोरी. ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज़ अ प्लेस वेयर डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड टेम्परेरली as long as they are being executed. It is very fast and expensive but has limited storage capacity. Internal memory is of two types, RAM and ROM. So we'll study about RAM and ROM. Before that, let's understand. So हर कंप्यूटर के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है. मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी, एक ही बात है. ठीक है,
प्राइमरी मेमोरी डेटा स्टोर करती है टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है। जब तक डेटा एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक वो स्टोर करके रखती है। ये बहुत फास्ट और एक्सपेंसिव है, बट इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है। आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा से ज़्यादा उसमें स्टोर नहीं कर सकते। इसकी दो टाइप्स है, रैम और रोम। रैम का मतलब है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म है हमारा रीड ओनली मेमोरी। पहले रैम के बारे में पढ़ते हैं। रैम है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी दैट कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली. Whatever information we enter into the computer goes into RAM and remains there as long as we are working on an application. It is a volatile memory as data and instructions are stored temporarily during its processing only and lost forever when the computer is switched off. सी यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी गिवन है कि हमारे पास जो ब्लैक बोर्ड है वो एक रैम की तरह काम करता है, जिसपे हम कॉन्स्टेंटली हम लिखते जाते हैं, बट एक बार वो रब कर दिया तो इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड अगेन, ठीक है। जो एग्जांपल है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी में भी यही होता है। हम डेटा को तब तक स्टोर, कोई भी हम डेटा स्टोर करते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है, रैम में जाता है, और वो तब तक रहता है जब तक हम उस ऐप पे काम करें। जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ वैसे ही सब कुछ उड़ जाता है उसमें से, ठीक है। जैसे ब्लैक बोर्ड को एक बार रब किया तो सब कुछ गायब, इट कैन नॉट कम बैक। फिर हमारे पास चार टाइप्स ऑफ रैम दिए हैं, DRAM, रैम, SRAM, SDRAM और DDR, ठीक है। तो DRAM है हमारा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इट स्टोर्स डेटा टेम्पोरेरली एज द डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर सप्लाई सस्पेंडेड, इट नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली इन ऑर्डर टू रिटेन डेटा। तो डेटा को रिटेन करने के लिए हमें उसे रिफ़्रेश करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये टेम्परेरी बेसिस पे डेटा स्टोर करता है। डेटा पावर सप्लाई ख़त्म होते ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो DRAM होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका मतलब है कि हमें बार बार डेटा को रिटेन करने के लिए बार बार उसे रिफ़्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमारा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि है SRAM, ये फास्टर और मोर एक्सपेंसिव होता है RAM से। इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड like RAM to retain information. It loses data when power is turned off. See, अगर ये RAM का पार्ट है तो इट इज़ कॉमन इन ऑल द फोर पार्ट्स की हमारा जो डेटा है वो पावर सप्लाई के बाद ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो कोई भी रैम का पार्ट हो, चाहे वो RAM हो, SRAM हो, SDRAM हो या DDR हो। पावर ख़त्म होने के बाद डेटा कैन नॉट बी रिटेन्ड, ठीक है। RAM था हमारा, हमें उसे रिफ़्रेश करना पड़ता था डेटा को रिटेन करने के लिए। अब हमारा जो SRAM है इसमें क्या होता है, इसमें हमें डेटा को बार बार रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता क्योंकि स्टैटिक है, ठीक है, और ये फास्टर है हमारा RAM से। फिर हमारे पास आता है SDRAM जो कि सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखें, इसकी फुल फॉर्म है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिंक्रोनस डायनेमिक, ओके। सो it uses a synchronous interface to transmit large amounts of data at high speed. This improves the efficiency of a computer as data is delivered in a shorter duration. इसमें क्या होता है, हमारा इसकी जो स्पीड होती है ये एक टाइम पे इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ये एक टाइम पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। फिर है DDR डेटा डबल डेटा रेट मेमोरी। DDR है डबल डेटा रेट मेमोरी। ये मेजरली यूज़ की जाती है इंटेल पेंटियम 4 सिस्टम्स में। इट रिक्वायर्स लेस पावर एंड हैज़ अ स्पीड विच इज़ डबल दैन दैट ऑफ SDRAM। सो इसकी स्पीड ना, हमारी SDRAM की स्पीड बहुत हाई थी और डेटा भी ज़्यादा स्टोर करता था, बट इसकी स्पीड SDRAM से भी डबल है और एनर्जी इसमें बहुत कम चाहिए। सो DRAM में हमें बार बार रिफ़्रेश करना होता था, SRAM में हमें रिफ़्रेश नहीं करना होता। SDRAM हमारा फास्ट होता है और ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है। DDR उससे भी फास्ट होता है, उसका डबल फास्टर होता है और लेस एनर्जी यूज़ करता है। हमारा फिर आता है ROM, that is read only memory. It stands for read only memory. It is a type of memory from which information can only be read, whereas in a RAM information can be read from and also written to. See, RAM और ROM का यही डिफरेंस है कि RAM में हम डेटा को, इन्फॉर्मेशन को लिख भी सकते थे, रीड भी कर सकते थे, बट ROM, जैसे हमारा वर्ड ये रीड ओनली मेमोरी, ROM में हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, कुछ लिख नहीं सकते। इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एज इट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। सो ये क्या है, हमारे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ये डेटा को, इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करती है। डेटा स्टोर्ड इन ROM कैन नीदर बी मॉडिफाइड नॉर बी रिमूव्ड, ठीक है। द प्राइमरी यूज़ ऑफ ROM इज़ ड्यूरिंग द
बूटिंग प्रोसेस, दिस इज़ द इनिशियल प्रोग्राम यूज टू स्टार्ट अ कंप्यूटर व्हेन पावर इज़ टर्न्ड ऑन। तो बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? प्रोग्राम होता है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसमें जो प्रोग्राम होता है, इनिशियल प्रोग्राम होता है, उसे हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, सो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल होता है, इसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, कुछ लिख नहीं सकते। परमानेंटली स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को, इसमें हम डेटा को ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं ना ही रिमूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारा ऑडियो वीडियो डिस्क, ठीक है, वो रोम का एग्जाम्पल है। वंस द सॉन्ग्स CD में डाल दिए गए, द डिस्क कंटेंट्स कैन नॉट बी चेंज्ड, एक बार डिस्क में कंटेंट डाल दिया, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। फिर हमारा अगेन टाइप्स ऑफ रोम है, इसमें भी अगेन हमारा 4 टाइप्स है, प्रॉम, ई प्रॉम और फ्लैश मेमोरी। प्रॉम है हमारा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रॉम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रॉम है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फ्लैश मेमोरी उसके बाद। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रोम, देर आर सेवरल रोम वेरिएंट्स दैट कैन बी चेंज्ड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम, 4 टाइप्स हैं। प्रॉम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या कहता है? द कंटेंट्स स्टोर्ड इन प्रॉम कैन बी प्रोग्राम्ड यूजिंग अ स्पेशल डिवाइस नोन एज प्रॉम प्रोग्रामर। It can be programmed only once, that is at the time of manufacturing, and cannot be modified later. PROM provides a faster and less expensive approach for storing. So, प्रॉम क्या होता है? प्रॉम एक स्पेशल डिवाइस होता है, इसे प्रोग्राम करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसे कहते हैं प्रॉम प्रोग्रामर। ठीक है, इसमें हम एक ही बार डेटा को डाल सकते हैं। ठीक है, एक ही बार हम इसे प्रोग्राम कर सकते हैं, वो भी जब हम उसे मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, उसके बाद इसे हम कभी मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये फास्टर होता है और कम एक्सपेंसिव होता है। फिर है ई प्रॉम, दैट इज़ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड repeatedly with the help of a specialized software. The contents stored on the chip can be erased by exposing it to ultraviolet rays. ठीक है, तो ई प्रॉम में क्या है? ये इरेज हो सकता है, रीप्रोग्राम भी हो सकता है, कितने भी टाइम रिपीटेडली आप इसे रीप्रोग्राम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर से। ठीक है, और इस पर जो हम स्टोर करते हैं चिप पे, जो कंटेंट स्टोर करते हैं हम चिप पे, वो इरेज कर सकते हैं जब हम ये अल्ट्रावायलेट रेज के अंडर हम इसे इरेज भी कर सकते हैं। देन हमारे पास हमारा ई प्रॉम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द कंटेंट्स ऑन द चिप कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड इन ब्लॉक्स इंस्टेड ऑफ वन बाइट एट अ टाइम। ठीक है, इट ऑल्सो हैज़ द प्रोविजन ऑफ सेलेक्टिव रिमूवल विच मीन्स वी कैन इरेज द पर्टिकुलर डेटा बाइट बाय बाइट इंस्टेड ऑफ इरेजिंग इट कम्प्लीटली। तो देखो, हमारा जो ई प्रॉम था, इसमें क्या होता था? हम जब इसे रब करते थे ना, इसे इरेज करते थे, तो एक साथ पूरा डेटा इरेज हो जाता था। बट हम ई प्रॉम में डेटा को इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं। कैसे? हम इसे 1 बाइट एट अ टाइम भी इरेज कर सकते हैं। इसमें हम सेलेक्टिव रिमूवल कर सकते हैं, हम एक साथ सारा डेटा रिमूव नहीं होगा, हम एक पर्टिकुलर डेटा बाइट बाय बाइट इरेज कर सकते हैं। फिर है फ्लैश मेमोरी, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ई प्रॉम होता है विच मेंटेन्स द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इवन विदाउट अ पावर सोर्स। इसमें ना हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो रहती है बिना पावर सोर्स के भी। जो कंटेंट है वो इरेज हो सकते हैं, रीप्रोग्राम्ड हो सकते हैं बिग सेक्शंस में। ठीक है, विच मेक्स इट फास्टर देन रेगुलर ई प्रॉम। फ्लैश मेमोरी बीइंग ड्यूरेबल इज मेजरली यूज्ड इन मेमोरी कार्ड्स, मोबाइल फोन्स, MP3 प्लेयर्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये ड्यूरेबल होते हैं, इसलिए ये मोस्ट ऑफ द टाइम मेमोरी कार्ड्स में ही यूज़ होते हैं। ठीक है, प्रॉम में क्या था? डेटा मॉडिफाई नहीं हो सकता, रब भी नहीं हो सकता, इरेज भी नहीं हो सकता, ना मॉडिफाई हो सकता है, फास्टर होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, ई प्रॉम में क्या था? एक साथ हमारा पूरा डेटा इरेज हो सकता था, मॉडिफाई भी हो सकता था। ठीक है, जब ये इरेज कैसे हो सकता था? जब हम उसे अल्ट्रा वायलेट रेज के अंदर रखते थे। ठीक है, ई प्रॉम में क्या होता था? हम इंस्टेड ऑफ पूरा डेटा हम बाइट बाय बाइट हम इसे इरेज कर सकते हैं, छोटे छोटे पर्टिकुलर डेटा को इरेज कर सकते हैं। देन है हमारा फ्लैश मेमोरी, स्पेशल टाइप ऑफ ई प्रॉम होता है जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को बिना पावर सोर्स के भी एक्सेस कर सकता है, और इसका कंटेंट इरेज प्रोग्राम कर सकते हैं, रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, फास्टर होता है ई प्रॉम से भी। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा मेमोरी कार्ड और MP3 प्लेयर्स। फिर आता है हमारा कैश मेमोरी। कैश, इसे हम कैश प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, कैश मेमोरी एक स्पेशल हाई स्पीड मेमोरी है विच कैन ईदर बी इंसर्टेड ऑन अ मदरबोर्ड और मेड अ पार्ट ऑफ CPU। तो कैश मेमोरी को हम या तो मदरबोर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं या तो CPU का पार्ट बना सकते हैं। CPU के अंदर हम कैश मेमोरी यूज़ करते हैं टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिपीटेडली रिक्वायर्ड टू रन प्रोग्राम्स। ठीक है, CPU कैश मेमोरी को यूज़ करती है स्टोर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस जो रिपीटेडली यूज़ होते हैं प्रोग्राम्स रन करने में। ठीक है,
thus improving the overall system speed। ठीक है, CPU कैश मेमोरी को यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शंस को जो बार बार यूज़ होने होते हैं, तो इसलिए ओवरऑल स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है। कैश इज़ मच मोर एक्सपेंसिव दैन रैम, बट इट इज़ वेल वर्थ गेटिंग अ CPU एंड मदरबोर्ड विद इनबिल्ट कैश मेमोरी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर आपको सिस्टम परफॉर्मेंस अच्छी करनी है तो आपको इनबिल्ट कैश मेमोरी लेनी चाहिए। ठीक है, ये रैम से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, कैश कैश ये हाई स्पीड मेमोरी होती है जो मदरबोर्ड या सीपीयू में इंसर्ट की जा सकती है। सीपीयू कैश मेमोरी यूज़ करता है टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस जो बार बार चाहिए होते हैं प्रोग्राम रन करने के लिए, जो ओवरऑल स्पीड इंक्रीज़ कर देता है। फिर है हमारा एक्सटर्नल मेमोरी या फिर सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी को हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलियरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलियरी मेमोरी, बात एक ही है। और इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या फिर, ठीक है, बात एक ही है। सो अनलाइक सिंस द मेन मेमोरी इट, जैसे मेन मेमोरी जो हमारी प्राइमरी मेमोरी थी उसकी तरह नहीं है, वो टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करती थी डेटा, बट ये परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ परमानेंट स्टोरेज करती है डेटा का। ठीक है, ये क्या करती थी, स्मॉल अमाउंट में डेटा को टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करती थी, बट एक्सटर्नल मेमोरी हमारी डेटा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को परमानेंट बेसिस पे स्टोर करती है। वेन एवर रिक्वायर द डेटा फॉर प्रोसेसिंग गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू द प्राइमरी मेमोरी। जब भी रिक्वायर होता है हम डेटा को सेकेंडरी से प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देयरफॉर डेटा हैज़ टू बी स्टोर्ड सेपरेटली इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस टू मेक इट परमानेंट एंड एक्सेसिबल फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसीलिए हमें ज़रूरी है सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा को स्टोर करना। द स्पीड ऑफ रिट्राइवल ऑफ डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल मेमोरी इज़ मच स्लोअर दैन दैट ऑफ द इंटरनल मेमोरी। स्पीड ऑफ रिट्राइवल ऑफ डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल मेमोरी इज़ मच स्लोअर दैन दैट। एक्सटर्नल मेमोरी का जो स्पीड ऑफ रिट्राइवल ऑफ डेटा है वो स्लोअर होता है दैन द इंटरनल मेमोरी में। ठीक है, सम कॉमनली यूज्ड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं हमारे हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब हमारे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, पेन ड्राइव। फिर हमारा लास्ट पार्ट आ जाता है इस चैप्टर का जो कि है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। आफ्टर दिस आवर चैप्टर विल बी फिनिश्ड। अ कंप्यूटर स्टोर्स एंड प्रोसेसेस डेटा और इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। जैसा कि आपको पता है बाइनरी नंबर या बाइनरी कोड्स में कंप्यूटर अपने इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है या फिर समझता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज़ बिट। मेमोरी का स्मॉलेस्ट यूनिट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिट क्या है, मेमोरी का स्मॉलेस्ट यूनिट है, मेमोरी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, बिट, राइट। सो बाइनरी डिजिट दैट कैन होल्ड अ सिंगल स्टेट ईदर 0 और 1। बाइनरी यूनिट क्या होता है, बाइनरी डिजिट क्या होता है, हमारा 0 और 1 से बना हुआ जो नंबर होता है वो होता है हमारा बाइनरी डिजिट। ठीक है, और स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी हमारे बिट। ठीक है, सम ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेमोरी यहाँ पे गिवन है, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट, यूटाबाइट। ठीक है, निबल हमारा होता है 4 बाइट्स का ग्रुप और बाइट, ठीक है, निबल होता है 4 बाइट्स का ग्रुप और बाइट होता है सॉरी निबल हमारा होता है 4 बिट्स। बिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है यूनिट। ठीक है, निबल 4 बिट्स का ग्रुप होता है और बाइट हमारा 8 बिट्स होता है। किलो बाइट हमारा 1024 बाइट्स होता है। मेगाबाइट हमारा 1024 KB होता है। GB हमारा 1024 MB होता है। TB हमारा 1024 GB होता है। PB हमारा 1024 TB होता है। ठीक है, सो बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, जोटाबाइट, एक्साबाइट, सॉरी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट, यूटाबाइट। ठीक है, और 1024 हमारा कितना होता है, 10 टू द सॉरी 2 to the power 10 इज़ 1024, 2 to the power 10 इज़ 1024। निबल में 4 बिट होते हैं और बाइट में 8 बिट होते हैं। बिट हमारा स्मॉलेस्ट मेमोरी का यूनिट होता है। दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू। इफ़ यू लाइक प्लीज़ like, share and subscribe this channel. Make sure to comment and tell your feedbacks.